Hello everyone, my name is Yogesh Yogendra. I am incoming software engineer at Ecolite. So yeah, before getting into the video, let's talk about something very important. Newton School has recently launched a completely online MS program in association with the Europe's MIA University. As you all know, that the Newton School is dedicated to helping students to become a full-stack developer and also get them placed at some of the best companies in the country. But now Newton School has gone one more step further with this MS degree program. If you're a working professional or a student interested in pursuing the masters in computer science but don't want to deal with the burden of high college fees, don't worry, as Newton School is now offering a special 1-year master degree completely online, allowing you to work and study from your home. By having an online degree by the European University and accepted all across the world, you will be able to equip yourself with a valuable skill set while taking your career to the next level in India and abroad. If you wish to improve your chances of success in the computer science industry, there is no better time than today. For more information on how Newton School can offer this incredible opportunity, check out this website, and trust me guys, this MS program could prove to be a turning point in your career. So my friends, what are you waiting for? Check out the link in the description box and register. Then an expert from the Newton School will Hello everyone, this is Yogesh. Welcome back to the another lecture of DSA with C++ कोर्स। तो यार हम लोग यार आज फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो के संग, और आज हम लोग एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो रिलेटेड टू बाइनरी सर्च होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग लास्ट डे बाइनरी सर्च को देख चुके थे, राइट? सो वी सॉ बाइनरी सर्च, राइट? सो वी सॉ बाइनरी सर्च। चलो एक क्वेश्चन करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि बाइनरी सर्च कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। क्योंकि लास्ट हम लोग यार देख लिए थे कि बाइनरी सर्च क्या होता है, उसका एल्गोरिथम देखे थे, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कशन की थी, राइट? तो आज हम चलो देखते हैं कि इसको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो उससे जाने से पहले तुम लोग हमारा चैनल को विजिट कर सकते हो एंड यू कैन सी दैट यार बहुत सारे प्लेलिस्ट आ चुके हैं, जावा कलेक्शन, सी प्लस, टी लूप्स, सी प्लस प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग एंड डीएसए विद सी प्लस अब आने लगा है। ठीक है, तुम लोग जाके चैनल चेकआउट करो, और तुम लोग चैनल पर अभी तक अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब करने से यार इस चैनल का रीच बढ़ेगा, और लाइक मारना, लाइक नहीं मारोगे तो रीच कैसे आएगा? और इस तरह के वीडियो हम लोग लाते रहेंगे, मोटिवेट होगा यार, मोटिवेट होगा। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डू इज कॉइन्स एंड ट्रायंगल। ठीक है, तो एक कोड शेप का प्रॉब्लम मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ क्या हुआ है, शेफ बिलोंग टू अ वेरी रिच family, wow, which owns many gold mines. Today he bought n gold coins and decided to form a triangle using these coins. Isn't it strange? मतलब उसके पास coins है और उसे triangles बनाने, right? Chef has an unusual way of forming a triangle using the gold coins, which is described as follows. He put 1 coin in the first row, 2 coins in the second row, 3 coins in the third row and so on as shown in the given figure. ठीक है, तो मतलब यार हर एक रो में वो कॉइन्स रखते जाएगा। रो नंबर 1 है, अगर 1 है तो 1 कॉइन है, रो नंबर 2 में 2 कॉइन, रो नंबर 3 में 3 कॉइन है। इस डायग्राम के साथ तुम्हें समझ आ रहा होगा, कॉइन रो 1 में 1 कॉइन, रो 2 में 2 कॉइन, रो 3 में 3 कॉइन, रो 4 में 4 कॉइन, रो 5 में 5 कॉइन, लाइक दिस। सो शेफ इज इंटरेस्टेड इन फॉर्मिंग अ ट्रायंगल विद मैक्सिमम पॉसिबल हाइट यूजिंग एट मोस्ट n कॉइन्स। तो यार इस बंदे के पास, मतलब शेफ के पास n कॉइन्स है, ठीक है, और उसे एक मैक्सिमम पॉसिबल हाइट वाला आंसर निकालना है। ठीक है, एक मैक्सिमम पॉसिबल हाइट होना चाहिए, और उसको यार मैक्सिमम मतलब एट मोस्ट ही कैन यूज n कॉइन्स, मतलब उसका जो n कॉइन्स अवेलेबल है तो एट मोस्ट वो यूज कर सकता है। कैन यू हेल्प हिम टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट? और फिर टेस्ट केस देख लेते क्या दिया हुआ है, t दिया हुआ है टेस्ट केस, n नंबर ऑफ मतलब n बेसिकली कॉइन्स दे दिया, और फिर हमें प्रिंट करना है मैक्सिमम पॉसिबल हाइट। ओके, सो t इज हमारा 100 दिया हुआ है, सो n हमारा 10 टू द पावर 9 है। तो यार 10 टू द पावर 9 है, तो तुम्हें पता ही है कांस्टेंट इतना बड़ा है यार, कांस्टेंट इतना बड़ा है 10 टू द पावर 9, तो समझ आ रहा है लीनियर सर्च तो होने वाला नहीं यार। लीनियर सर्च मैक्स टू मैक्स मतलब बेसिकली तुम यहाँ लीनियर सर्च चलाओगे तो तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा 10 टू द पावर 9, राइट? अगर लीनियर सर्च करोगे और इसमें तुम्हारा TLE आएगा, राइट? तुम्हारा TLE आएगा। सो यू हैव टू यूज अ बाइनरी सर्च टेक्निक सो दैट तुम यू कैन बी यूजिंग लॉग एन ऑपरेशन। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बाइनरी सर्च करने वाले हैं, लीनियर सर्च नहीं करेंगे बिकॉज 10 टू द पावर 9 कांस्टेंट है, राइट? तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर टेस्ट केस दिया हुआ है, 3 बंदे हैं, 3 टेस्ट केसेस, दीज आर द टेस्ट केसेस। अगर 3 नंबर ऑफ बॉल्स है मतलब कॉइन्स है, तो हम लोग यार हाइट 2 का बना सकते हैं। 5 कॉइन्स है तो 2 हाइट का बना सकते हैं, 7 कॉइन्स है तो 3 हाइट का बना सकते हैं। जैसे 7 कॉइन्स हमारे पास है, वी आर हैविंग 7 कॉइन्स, ठीक है, हमारे पास 7 कॉइन्स है, तो यार हम लोग यार कितना का आंसर कितना बन रहा है, 3 हाइट का बन रहा है। कैसे बनेगा? तो मैं पहले रो नंबर 1 में 1 बंदा को रखा, रो 2 में 2 बंदा को रखा, रो 3 में 3 बंदा को रखा। कितने बंदे हुए? 3 4 5 6। आई हैव यूज्ड 6 कॉइन्स, राइट? और मेरे पास मैक्सिमम 7 कॉइन्स है,
अगर मैं और एक लेवल बढ़ाऊं, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, अगर मैं और एक लेवल बढ़ाऊं तो 1 2 3 4, सो आई विल बी रिक्वायरिंग हाउ मेनी कॉइन्स, 4, फिर तुम्हारा बेसिकली 6 में 4 ऐड हो जाएगा। तो अगर मैं इसे इंक्लूड कर दूं तो अब हमारा 10 नंबर ऑफ कॉइन्स हो जाएंगे। तो क्या हमारे पास 10 कॉइन्स है? वी आर हैविंग ओनली 7 कॉइन्स, राइट? हमारे पास सिर्फ 7 ही कॉइन्स है, बट अगर मुझे 4 मतलब इफ आई वांट टू मेक a triangle with 4 rows, then I require 10 number of coins, but I don't have, right? I have only 7 number of coins, so I cannot make, मैं नहीं बना सकता 4 रो का, so I will be making only 3 rows, मैं सिर्फ 3 ही रो बनाऊंगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 3 रो हो जाएगा। तो दिस इज माई आंसर। तो तुम्हें यार एक चीज समझ यहां पर आ रहा है, अगर मैं रो को इंक्रीज कर रहा हूं तो सारे रोज में एक एक कॉइन तुम्हारा इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब पहले के पास पहले में सिर्फ एक कॉइन है, दूसरे में 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो यार ऐसे करते करते यार इंक्रीज होते जा रहा है। तो तुम्हें यार अगर तुम्हें मैं बोलूं, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बोलता हूं, मुझे पता है हाइट मुझे यार 8 बनाना है, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना यूज हो रहा होगा? इफ हाइट इज 8 तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना यूज हो रहा होगा? सिंपल है, n इंटू एन प्लस 1, राइट? तुम्हें पता है फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ठीक है? ये हमारा फॉर्मूला बेसिकली क्या चीज का है? सम ऑफ n एलिमेंट्स, राइट? अगर हमारा n इक्वल टू समथिंग दिया तो इफ वी वांट टू फाइंड सम ऑफ n एलिमेंट्स फ्रॉम 1 से n, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, मैं यहाँ पर पहला वाला में सिर्फ मतलब पहला अगर रो लूं तो सिर्फ एक बंदा है, दूसरे रो में 2 बंदा, तीसरे रो में 3 बंदा, तो nth रो में nth बंदा होगा, nth रो में, ठीक है? तो मुझे निकालना है टोटल कितने बंदे हैं उस ट्रायंगल में। तो जैसे यहाँ देख सकते हैं, मैं h इक्वल टू 8 बाद में बताता हूँ, पहले यहाँ पर देखते हैं h इक्वल टू 3, इसका आंसर h इक्वल टू 3 है ना, तो इसको इस फॉर्मूले में बैठाओ, तो 3 इंटू 4 बाई 2, तो कितना हो गया आंसर? 6। तो यहाँ पर देखो हम लोग 6 नंबर ऑफ कॉइन्स यूज कर रहे थे, राइट? वी वर यूजिंग 6 नंबर ऑफ कॉइन्स। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं n इक्वल टू 8 लूँ, मतलब हाइट इक्वल टू 8 लूँ, तो कितना हो जाएगा हमारा? मैं हाइट को 8 पकड़ रहा हूँ, ठीक है? मैं लिया 8 इंटू 9 बाई 2, ऐसे 4 का जा, 9 4 जा, कितना हो गया? 12 36 42, तो 9 27 36 हो गया, ठीक है? सो माई टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स विच आई विल बी यूजिंग इज 36 इफ आई एम मेकिंग अ हाइट ऑफ 8, ठीक है? तो ऐसा सीन है। तो यार हमें तो नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हुए हैं, आई हैव नंबर ऑफ कॉइन्स एंड आई हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट। तो लीनियर सर्च में बेसिकली क्या कर सकते हैं हम लोग? क्या करेंगे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाइट इक्वल्स टू 1 का देखेंगे आंसर, तो 1 में क्या हो रहा है? सिर्फ 1 चेक करो, क्या ये लेस देन इक्वल्स टू हमारा जो अवेलेबल, बेसिकली बोल सकते हैं हम लोग का अवेलेबल कॉइन्स, हमारे पास जो कॉइन्स है वो बराबर उसका लेस देन इक्वल्स टू है कि नहीं? तो अगर हो जा रहा है तो लेट्स ट्राई फॉर h हाइट इक्वल्स टू 2, हाइट इक्वल्स 2 में क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने यूज हो रहे होंगे? 2 + 1 3 कॉइन्स यूज हो रहे होंगे। चेक करो कि हमारा अवेलेबल से लेस देन इक्वल्स टू है कि नहीं। फिर हाइट इक्वल टू 3 चेक करो, हाइट इक्वल टू 3 चेक करो, 3 में कितना? 3 2 5 1 6, तो 6 बंदे हैं। चेक करो अवेलेबल से लेस देन इक्वल टू है कि नहीं। तुम यार ये लाइन से चेक करोगे, तुम्हारे पास 10 टू द पावर 9 कांस्टेंट है, 10 टू द पावर 9 कांस्टेंट है, तो तुम यार लाइन से चेक करना चाहोगे तो टीएलई आएगा, बिकॉज 10 टू द पावर 9 ऑपरेशंस करना होगा तुम्हें। तो यार यहाँ कोई और एक तरीका नहीं है। सो लेट्स सी कि बाइनरी सर्च यहाँ पर लगाना तो हो गई यार, तो बाइनरी सर्च कैसे लगा सकते हैं? सो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द सर्च स्पेस, SEARCH सर्च स्पेस। तो हमारा सर्च स्पेस क्या होगा? तो मुझे यार निकालना है हाइट, तो मैं हाइट को ही सर्च स्पेस ले लेता हूं, ठीक है? HEIGHT, मुझे निकालना है हाइट, तो मैं हाइट को ही सर्च स्पेस ले लेता हूं, ठीक है? तो बेसिकली मेरा फंडा क्या होगा, मैं मान के चलता हूं यार, मैं लिख देता हूं बहुत कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट, मान लो यार 100, ऐसे एग्जांपल ले लिया। सो माय हाइट कैन बी 1, माय हाइट कैन बी 2 3 4 डॉट डॉट, माय हाइट कैन बी 99, माय हाइट कैन बी 100, ठीक है? कुछ भी हो सकता है। 100 तक एक बार एग्जांपल नहीं लिखते, एक बार एग्जांपल सिर्फ 10 तक लिखते हैं, ठीक है? सो माय हाइट कैन बी बिटवीन 1 to 10। तो अब मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या स्टार्टिंग से हाइट रेट करूं? 1 हाइट देखो आंसर आ रहा है कि नहीं, 2 के लिए देखो, 3 के लिए देखो, 4 के लिए डॉट डॉट 10 के लिए देखो आ रहा है नहीं, चेक करेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। मैं क्या करूंगा? बाइनरी सर्च, मतलब मिडिल में जाओ इसका, तो तुम्हारा बेसिकली मान के चलते 6 मिडिल है फॉर एग्जांपल, 6 मिडिल हमारा फॉर एग्जांपल है, तो मैं चेक करूंगा यार कि हाइट इक्वल टू अगर मैं 6 रखा तो मेरा आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है? तो यार कैसे लिख लेगा यहाँ पर? 6 इंटू मतलब n इंटू n प्लस 1 बाई 2, मतलब 6 इंटू 7 बाई 2, ऐसे काटो, 7 3 जा 21, 2 3 जा काटा 7 21। सो मुझे यहाँ पर कितने यूज करने पड़ रहे हैं कॉइन्स? सो द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स व्हिच आई एम यूजिंग इज 21। बस ये देखो कि हमारा जो गिवन कॉइन है, गिवन कॉइन वाज n, राइट? गिवन कॉइन वाज n। चेक करो अगर ये वाला कॉइन, इफ दिस कॉइन, ठीक है, इज लेस देन इक्वल्स टू दिस गिवन कॉइन, ठीक है? इफ माय करंट कॉइन which is forming height equal to 6 is less than is equals to this available coin, मतलब जो हमें given दिया हुआ है, तब तो यार हमारा 6 हाइट का आंसर बनाया जा सकता है, राइट? तो अगर 6 हाइट का मान लो यार ट्रू हो रहा है, मान लो इस कंडीशन हमारा ट्रू है,
तो यार 6 हाइट का हम लोग आंसर बना सकते हैं, तो इसका मतलब 5 का भी बन जाएगा, 4 से भी बन जाएगा, 3 2 1 उसके नीचे सबसे बन जाएगा। बिकॉज जब इस बंदे से हमारा बन जा रहा है आंसर, तो उसके नीचे वालों से भी तो आंसर होगा ही होगा। तो लेट्स ट्राई इन द सेकंड हाफ, उससे ज्यादा वाले बंदों में देखो कि हमारा उससे ज्यादा वाले में, ज्यादा हाइट वाले में हमारा बन रहा है कि नहीं। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज दैट, मेरा अपर बाउंड यहां पर है, लोअर बाउंड पहले इधर था, मैं लोअर बाउंड को यहां शिफ्ट कर दिया, राइट। सो माय अब सर्च स्पेस विल बी दिस। पहले मेरा सर्च स्पेस क्या था, लेट्स ड्रॉ द सर्च स्पेस अगेन, ठीक है। तो मैं यहां पर अगर सर्च स्पेस बनाऊं, तो अर्लियर माय सर्च स्पेस वाज दिस, राइट। आई वाज सर्चिंग इन दिस होल पार्ट। मैं यार जैसे ही मिडिल में गया, मैं चेक किया क्या 6 से आंसर बनाया जा सकता है, मैं देखा हाँ बनाया जा सकता है, बस मान के चलो बनाया जा सकता है। सो आई एम नॉट गोइंग टू आइटरेट इन दिस पार्ट, मतलब इससे भी तो बन जाएगा, तो मुझे तो हाईएस्ट निकालना है, तो नेक्स्ट हाफ में चेक करो। सो मैं अब इस हाफ में चेक करूंगा, ठीक है। सो आई विल बी आइटरेटिंग इन दिस लोकेशंस, राइट। अब इस वाले पार्ट में चेक करो, तो फायदा क्या हुआ, मैं आधे बंदों को नहीं चेक कर रहा हूं, बिकॉज मुझे पता है 6 से जब हो गया तो उससे नीचे वाले बंदों से भी हो जाएगा। अब आगे वाले पार्ट में देखो, तो इस वाले में मान के चलते यार हमारा 8 हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यार यहाँ से अब 8 से कॉइंस निकालेंगे, ये कॉइंस 8 इंटू 8 n इंटू मतलब बेसिकली हाइट इंटू हाइट प्लस 1/2, दैट इज 8 इंटू 9/2 ऐसे करके निकालेंगे। जो भी आंसर x आएगा मान लो, बस चेक करो कि x हमारा लेस देन इक्वल्स टू n है कि नहीं। अगर ट्रू है तो मतलब 8 से भी आंसर बन गया, तो हम लोग नेक्स्ट हाफ में देखेंगे, दैट इज इन दिस पार्ट, राइट, इन दिस लोकेशंस, इन दिस पार्ट। अगर फॉल्स है तो 8 से पहले, दैट इज ओनली इन दिस पार्ट, ओनली इन दिस पार्ट। मतलब बाइनरी से तो तुम्हें पता ही है, बिकॉज मैं लास्ट डे बता दिया था अच्छे से, सिर्फ मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा था, एक एग्जांपल हम लोग देख रहे थे। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन, समझ आ गया। चलो इसे हम लोग कोड करके देखते हैं कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या क्या लेना है, हमें यार टेस्ट केसेस लेने हैं और n का वैल्यू लेना है। चलो लेते हैं, लेट्स टेक दैट पार्ट, ठीक है। सो आई एम टेकिंग, यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं टेस्ट केस लेना है ना, तो फर्स्ट टेक द टेस्ट केसेस। मैं लूप चला देता हूं, t माइनस माइनस, ओके, आई एम टेकिंग n, मैं ले लिया, ठीक है। अब मुझे यार सर्च स्पेस डिफाइन करना है, तो मैं क्या करूंगा, अब यार देखो यहां पर जो हमें n गिवन है, दैट इज द कॉइंस, टोटल नंबर ऑफ कॉइंस। तो मेरा यार मिनिमम हाइट क्या हो सकता है, व्हाट विल बी द लो एंड व्हाट विल बी द हाई। फर्स्ट आई हैव टू डिसाइड दिस टू पार्ट्स, राइट। मेरा मिनिमम हाइट क्या होगा, मिनिमम हाइट विल बी 1। मेरा एक हाइट का आंसर मिनिमम हो सकता है, क्योंकि n का वैल्यू यार मिनिमम 1 गिवन है हमारे टेस्ट केसेस में। हमारा जो है यहाँ पर टेस्ट केस में देखो, हमारा n का वैल्यू जो है मिनिमम 1 हो सकता है। तो अगर n का वैल्यू अगर 1 है, तो हमारा बेसिकली क्या हो गया, अगर 1 है तो मतलब हाइट 1 हो सकता है, तो मिनिमम हाइट कैन बी 1। सो आई एम अपडेटिंग द वेरिएबल लो एज 1। और मेरा मैक्सिमम क्या हो सकता है, अगर तुम्हें मैक्सिमम समझ ना आए, तुम डायरेक्टली यार जो एकदम अपर लिमिट है n का, दैट इज 10 टू द पावर 9, तो तुम उसे लिख सकते हो। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है कि हाई तुम्हारा क्या होगा, यू कैन राइट 10 टू द पावर 9, नो प्रॉब्लम, तुम्हारा रन कर जाएगा। भले ज्यादा ऑपरेशंस होंगे, बट टीएलई नहीं आएगा, एकदम श्योर है, ठीक है। बट हम लोग इस केस में देख सकते हैं, मैं थोड़ा और ऑप्टिमाइज करता हूं, इस केस में देख सकते हैं हम लोग, हमारा टोटल कॉइंस n है, तो इतना तो श्योर है यार, हाइट हमारा n से ऊपर नहीं होने वाला, तो मैं ऐसे ले लेता हूं n, मतलब n भी एकदम सही नहीं है, n से भी कम हाइट होगा, इस श्योर है। हमारा अगर हाइट n है, तो हमारा अगर नंबर ऑफ कॉइंस n है, तो हाइट पक्का n से कम होगा, एकदम श्योर है। बट मैं मान लेता हूं कि हमारा n इज द मैक्सिमम हाइट विच वी कैन मेक, मैं मान के चलता हूं, एज्यूमिंग, मतलब उतना तो होगा नहीं, तो मैं अपर लिमिट तक देना पड़ेगा, तो मैं अपर लिमिट दे दिया, ठीक है। सो आई एम अपडेटिंग एज लो एज 1, ठीक है। अब मैं हाई को अपडेट कर रहा हूं n -1 से अपडेट कर रहा हूं, ठीक है। अब वाइल लूप चलाओ, जो नॉर्मल चलाते हैं, लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, ठीक है। मैं यहां पर क्या करूंगा, मिड निकालूंगा, तुम्हें पता ही है बाइनरी सर्च का फंडा, मैं तुम्हें सिखा दिया हूं लास्ट क्लास में, ठीक है। यहां पर चेक करो, मैं यहां पर मानता हूं मुझे क्या निकालना है, बेसिकली व्हाट आई हैव टू फाइंड, आई हैव टू चेक इफ हाइट इज पॉसिबल नॉट। तो बस यहाँ पे एक हाइट का फंक्शन बना दो, मैं उसमें मिड पास कर देता हूँ, ठीक है। आई एम पासिंग मिड और n भी पास कर दो, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं, अगर ये एक पॉसिबल हो सकता है और एक हमारा एल्स कंडीशन होगा, राइट। अगर हमारा ये हाइट पॉसिबल है, तो मुझे एक आंसर वेरिएबल मेंटेन करना होगा, राइट। तो यहाँ पर मेरा आंसर एक बार मैं 0 लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरा ये वाला हाइट पॉसिबल है, अगर इसमें आंसर बन रहा है, तो मतलब उससे नीचे वाला ही बन जाएगा। तो एक बार आंसर को मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। मैं आंसर को मिड से अपडेट कर देता हूँ, मतलब मेरा ये वाला हाइट पॉसिबल है, और मैं लो को अपडेट किया मिड +1 से, ठीक है। एल्स वाली सीन में क्या होगा, मैं अपडेट कर रहा हूं हाई इज इक्वल्स टू मिड -1, ठीक है। सीन हुआ ऐसा हमारा। अब देखो, अब मुझे यार वो जो हाइट फंक्शन है, मुझे चेक करना है पहले हाइट फंक्शन का, तो मुझे पहले लिखना होगा कि हाइट फंक्शन बेसिकली है क्या, ठीक है। तो हाइट फंक्शन बेसिकली वही है, n × n + 1/2, मैं वो फंक्शन लगाऊंगा, चेक करूंगा कि हमारा बन रहा है कि नहीं। तो बस यहां पर एक वैल्यू निकालो,
बेसिकली हमारा मिड क्या था, व्हाट वाज द मिड, मिड वाज द हाइट, तो नंबर ऑफ कॉइन्स निकालो यार, उतना हाइट बनाने के लिए कितना कॉइन्स लगेगा, ठीक है। तो क्या होगा, एनी मतलब बेसिकली x मिड इंटू मिड प्लस 1/2, तो आई एम राइटिंग मिड इंटू मिड प्लस 1/2, ठीक है। बस देख लो, इफ दिस वैल इज लेस देन इज इक्वल्स टू n, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमारा रिटर्न हो जाएगा ट्रू, वरना रिटर्न एल्स में क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। मतलब अगर हमारा जो करंट हाइट हम ले रहे हैं, अगर यार वो हाइट लेकर और हमारा कॉइन्स जो बन रहा है वो यार गिवन कॉइन से भी कम है या बराबर है, तो मतलब बनाया जा सकता है ट्रू, वरना फॉल्स। और यहाँ पर बेसिकली हम लोग इस व्हाइल लूप से निकलेंगे बाहर, और यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा ans, ठीक है, प्रिंट कर दो। तो चलो हम एक बार टेस्ट केस को रन करते हैं। सो टेस्ट केस इज दिस पार्ट, राइट, लेट्स कॉपी दिस, 2 to 3 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहां पर इसे रन करता हूं, देखते हैं 2 to 3 हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं। तो या आवर आउटपुट इज 2 to 3, ठीक है। तो कोड यार बेसिक सा था, कोड एकदम सिंपल था, कोड में कोई चाप वाली बात नहीं था। यहाँ पर हम लोग हाइट अलग से निकाल रहे हैं, बस चेक कर रहे हैं कि हमारा ये हाइट पॉसिबल है कि नहीं। अगर पॉसिबल हमारा हाइट है तो मैं आंसर को अपडेट कर रहा हूं और मैं नेक्स्ट सर्च स्पेस में जा रहा हूं। अगर नहीं पॉसिबल है तो मैं फर्स्ट सर्च स्पेस में चला गया। दैट्स इट, एकदम बेसिक एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी सर्च। एक अच्छा एग्जाम्पल था, मुझे बेस्ट एग्जाम्पल लगा तो मैंने दिखा दिया, ठीक है। सो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट, राइट। तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो यार मैं तो बोलूंगा यार प्लीज, अगर समझ आया है तो लाइक मारना वीडियो को, यार लाइक मारोगे तो मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, राइट। और यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। सब्सक्राइब कर दो यार, चैनल को ग्रो करो यार, तब मजा आएगा ना वीडियोस बनाने में, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो कोई चाप वाली बात नहीं, तुम लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।